Student, today we read something about tangent and normal. Here we take some curve, that is this one. Here we take some curve, and this is axis of y and this is axis of x. Here this is x axis and this is y axis, and here this is origin. Now take any point on this curve, this is P, and draw a tangent at P point which intersects x axis at T point, and the normal at this point P, Pn, which intersects x axis at n point. Now draw perpendicular P from x axis. Now here we draw perpendicular from P on x axis, that is Q. Here this PT is called length of tangent and Pn is called length of normal and Qt is called length of subtangent and Qn is called length of subnormal. Here we take, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कर्व लिया है. कर्व दिस इज, लेट अस सपोज दैट y is equal to fx be a कर्व. ये आपका एक कर्व है. इस पर दिस इज द टेंजेंट, pt इज द टेंजेंट. हियर pt and pn be the tangents and normal, tangent and normal at P point which intersect x axis at P and n at T and n respectively. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका एक कर्व है और इस कर्व पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा की है pt, और ये pt टेंजेंट जो है x एक्सिस को t पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और p पॉइंट पर ये pn, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट कोई पॉइंट विच इंटरसेक्ट दिस एक्सिस एट n पॉइंट. ये आपका x एक्सिस है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक कर्व है. कर्व पे ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर PT एक टेंजेंट है, अब Pn ये P पॉइंट पर नॉर्मल है जो x एक्सिस को T पॉइंट और n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. लेट अस सपोज दैट हियर y is equal to fx be a curve and on this curve P is any point and PT is tangent and Pn is normal on this curve which intersect x axis at point T and n respectively. Now we draw perpendicular from P on this x axis. हम यहाँ पर P पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. दिस इज PQ which intersect x पॉइंट एट Q. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है P पॉइंट से x एक्सिस को, x एक्सिस पर, वो x एक्सिस को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. We know that this angle is psi. This is the angle made by the tangent with x axis in the positive direction. हमने मान लिया कि जो PT टेंजेंट है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साई एंगल बना रही है. दिस इज साई एंगल. अब वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी 90 माइनस साई. दिस इज 90 डिग्री माइनस psi. Let us suppose that coordinate of P be x and y. यहाँ पे सपोज करते हैं let P x y and PT makes angle psi with x axis. आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो PT है टेंजेंट वो x एक्सिस से साई एंगल फॉर्म कर रही है। Here PT is called length of tangent, PN is called length of normal, QT is called length of subtangent and QN is called length of subnormal. So PT is this is length of tangent, PT is length of tangent, PN is length of normal, PN is length of normal, QT is length of subtangent, QT is length of subtangent and QN is length of subnormal. QN is length of subnormal. First we find here PT, that is length of tangent. So this point P is xy, coordinate of P is xy. So QP is, here we see that QP is point, QP distance is y here. So we know that slope of tangent यानी tan psi in this triangle PTQ, in triangle PTQ tan psi is equal to perpendicular upon base. This is perpendicular in this triangle PTQ, in this triangle PTQ this tan psi is equal to PQ upon base QT, and we know that here PQ is y upon QT. So we write this tan psi is equal to, we know that tan psi is equal to dy by dx. We know that tan psi is equal to d by dx of y. This is slope of tangent. This is slope of tangent. So we write here this is d by dx is equal to y upon qt. Now we find here value of qt is y divided by d by dx, and we know that this is formula for length of subtangent. So आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल PTQ में जब हम tan साई निकालेंगे तो tan साई जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर PQ होगा और बेस यहाँ पर QT होगा, और PQ जो है ये y के इक्वल है क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है, और QT जो है ये आपको फाइंड आउट करना है. We know that tan psi, this is the slope of tangent which can be also written as d by dx of y in terms of dy by dx. So here we find value of qt. So qt is equal to y by d by dx. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में PTQ में जो QP है वो y के इक्वल है, बिकॉज क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है और ये एंगल साई है, तो जब हम इसमें tan साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan साई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PQ अपॉन QT. अब PQ है आपका y के इक्वल और QT, और tan साई जो है ये d by dx ऑफ y के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम QT की वैल्यू निकालेंगे तो QT is equal to y upon dy by dx. Now similarly we take this triangle again in triangle PTQ. Find sin psi, and we know that sin psi is equal to perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular is PQ and hypotenuse is PT, and we know that PQ is here y and PT sin psi. So value of PT is from this, PT is equal to y upon sin psi, that is y cosec psi, and we know that this cosec psi can be written as under root 1 plus cot square psi, and we know that this
cot psi in terms of tan psi, that is 1 upon tan square psi, and we take LCM here, tan square psi, so we can write here under root 1 plus tan square psi divided by tan psi. Now put value of tan psi here, we get y under root 1 plus d by dx whole square divided by d by dx. So we have to formula here pt is equal to y, so pt is equal to y under root 1 plus d by dx whole square divided by d by dx. So this is the formula for length of tangent. So this is the formula for length of tangent. आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल PTQ में जब हम साइन साई फाइंड आउट करेंगे तो साइन साई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PQ अपॉन PT, और PQ यहाँ y के इक्वल है अपॉन में PT, तो इसको हम PT की वैल्यू निकालेंगे तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन साइन साई, और y अपॉन साइन साई को y कोसेक साई लिख सकते हैं। फिर कोसेक साई की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई होती है। कॉट साई को tan में कन्वर्ट करेंगे, इसको 1 अपॉन tan स्क्वायर साई लिखेंगे। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर साई जब एलसीएम लेके रूट के बाहर आएगा तो tan साई बचेगा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर साई आएगा। फिर tan साई की वैल्यू d बाई डी एक्स है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका स्क्वायर अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ये PT यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है y अंडर रूट 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगी। अब हम इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। now we take this triangle PQN. So in triangle PQN we can see here this is psi angle and this is 90 degree, so this angle is 180 minus 90 plus psi, that is 90 minus psi। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TPN एंगल है वो 90 डिग्री है और ये साई है, तो 90 और साई को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस साई निकलेगा। अब ट्रायंगल PQN में हम देख सकते हैं यहाँ पर हम PN ये लेंगे तो इसमें साइन 90 माइनस साई, अगर हम साइन 90 माइनस साई की वैल्यू निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका QP है अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर PN है। एंड आल्सो वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉस साई इज इक्वल टू QP इज हियर, दिस इज y अपॉन PN। So when we write PN is equal to y sec psi, so sec psi can be written as 1 plus under root 1 plus tan square psi, and putting value of tan psi, that is d by dx of y, so this can be written as d by dx of y। So here Pn is equal to y under root 1 plus d by dx whole square। Similarly now we आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल PQN में जो अगर हम साइन 90 माइनस साइन निकालें तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर यहाँ PQ होगा, हाइपोटेन्यूज आपका PN होगा, क्योंकि अब एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है तो साइन 90 माइनस साइन होगा वो PQ अपॉन PN होगा। अब PQ जो है ये y के इक्वल है अपॉन PN, यहाँ से PN की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन कॉस साई होगा, y अपॉन कॉस साई को y सेक साई लिख सकते हैं, सेक साई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई होता है और tan साई d बाई डी एक्स ऑफ y के इक्वल है, तो रख दिया। तो PN यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो y अंडर रूट 1 प्लस d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। अगेन वी टेक दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQN। In triangle PQN we take here tan 90 minus psi।
in this triangle PQN, we take tan 90 minus side, that is perpendicular upon base. So perpendicular is here PQ, upon base is here QN. So tan 90 minus theta, that is cot theta. So this can be written as cot psi upon PQ is here y upon QN. So QN is equal to y upon cot psi, and this can be written as Qn is equal to y tan psi, because 1 upon cot psi is equal to tan psi. So y and tan psi is equal to d by dx of y. So this is formula for सब नॉर्म. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्व हमने लिया है, जो कि ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स. ये कर्व है. इस कर्व से एक P पॉइंट है. P पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा की है PT, जो x एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल फॉर्म कर रही है. और इस P पॉइंट पे एक नॉर्मल है PN, जो x एक्सेस को n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ x एक्सेस पर. तो आप देख सकते हैं लेट f y इक्वल टू एफ एक्स भी एक कर्व. यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स आपका एक कर्व है, और PT ये कोई टेंजेंट है P पॉइंट पर. कर्व का जो P पॉइंट है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा की गई है जो PT है, जो x एक्सेस को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और x एक्सेस से साई एंगल फॉर्म कर रही है. और P पॉइंट पर ही एक नॉर्मल ड्रा किया गया है PN, जो x एक्सेस को n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ट्रायंगल जो एंगल TPN होगा वो 90 डिग्री होगा. फिर P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस एक्सिस पर, जो कि PQ है. यहाँ पर ये जो PT है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. PN is called length of normal, QT is called length of subtangent, and QN is called length of subnormal. Here PT is called length of tangent, PN is called length of normal, QT is called length of subtangent, and QN is called length of subnormal. हमने यहाँ पर सपोज किया कि P पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. इसका मतलब जो PQ है वो y के इक्वल होगा. अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल PTQ लें और PTQ में tan साई निकालें तो tan साई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PQ अपॉन QT. अब PQ जो है y के इक्वल है, क्योंकि P पॉइंट की कोऑर्डिनेट xy है, अपॉन QT. तो यहाँ से tan साई ये d बाई डी एक्स ऑफ y के इक्वल होता है, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है. तो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ y लिखा. इससे QT की वैल्यू निकालने के लिए QT इज इक्वल टू होगा y बाई डी एक्स ऑफ y. तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. इसी तरीके से अगेन ये ट्रायंगल ले रहे हैं PTQ. इस ट्रायंगल में हम जब साइन साई निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा. तो साइन सी इज इक्वल टू साइन साई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज PQ, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PT. तो साइन साई इज इक्वल टू PQ अपॉन PT. अब PQ आपका y की इक्वल है, अपॉन में क्या है PT, तो इसको PT लिख दिया. तो यहाँ से PT की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन साइन साई होगी. y अपॉन साइन साई को आप कोसेक साई लिख सकते हैं. अब कोसेक साई जो है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई होता है. कॉट स्क्वायर साई को 1 अपॉन टेन स्क्वायर साई लिख सकते हैं. इसमें जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट में, तो जो एलसीएम होगा वो रूट के बाहर आके टेन साई बचेगा, और अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होगा. फिर टेन साई को आप यहाँ पर लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y. तो ये फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज y अंडर रूट 1 प्लस d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dy बाई डी. इसी तरीके से हम ट्रायंगल ले रहे हैं PQN. इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साई है. तो ये हम एंगल निकालेंगे तो 180 में से 90 और साई को ऐड करके माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो 180 माइनस 90 प्लस साई, दैट इज 90 माइनस साई. सो इन ट्रायंगल PQN, PQN ट्रायंगल ले रहे हैं तो साइन 90 माइनस साई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन PN. So 90 minus psi is equal to cos psi, and QP is equal to, this is y upon Pn.
सो पी एन इज इक्वल टू वाई अपॉन कॉस साई, वाई अपॉन कॉस साई को हम सेक साई लिख सकते हैं, तो पी एन इज इक्वल टू वाई सेक साई हो गया। अब सेक साई जो है 1 + tan स्क्वायर साई के इक्वल होगा, और tan साई की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका उसका। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा y √1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पी क्यू एन ट्रायंगल लेंगे, तो पी क्यू एन ट्रायंगल में यदि हम tan 90 माइनस साइन निकालें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी पी क्यू अपॉन क्यू एन होगा, और पी क्यू यहाँ y के इक्वल है, और tan 90 माइनस साइन होता है कॉट साइन। जब हम क्यू एन की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन कॉट साइन होगा, और 1 अपॉन कॉट साइन को हम tan साइन लिख सकते हैं, तो क्यू एन इक्वल टू वाई tan साइन हो गया। अब tan साइन की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, तो क्यू एन जो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपका आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल में 4 मेन फार्मूले हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। यहाँ पर देख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका कर्व है, इस कर्व पे कोई P पॉइंट लिया गया है, P पॉइंट पे टेंजेंट PT है जो x एक्सिस को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और x एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो है tan साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। इसके बाद P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, जो कि ये नॉर्मल है इस कर्व के लिए, ये कर्व के लिए P पॉइंट पे एक नॉर्मल लिया गया है Pn, जो x एक्सिस को n पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने P पॉइंट से इस x एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है PQ, जो x एक्सिस को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर PT जो होता है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, Pn इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, Qt इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड Qn इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं PTQ में, PTQ में जब हम tan साई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ PQ होगा, बेस यहाँ QT होगा, और PQ की वैल्यू y की इक्वल है तो ये y हो गया अपॉन QT। अब यहाँ से आपको पता है कि tan साई dy बाई dx होता है, इसको हमने रख दिया यहाँ पर, तो QT की वैल्यू जब निकालेंगे तो QT इज इक्वल टू y अपॉन dy बाई dx, तो ये QT हमारा निकल आया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। फिर अगेन इसी ट्रायंगल में PTQ में जब आप साइन साई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर यहाँ PQ है, हाइपोटेन्यूज आपका PT है। अब PQ अपॉन PT हो गया, PQ y की इक्वल है, और PT, तो यहाँ से PT की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन साइन साई होगा, उसको 1 अपॉन साई को, साइन साई को हम कोसेक साई लिख सकते हैं, कोसेक साई √1 + कॉट स्क्वायर साई के इक्वल होता है, कॉट साई को 1 अपॉन tan साई लिखेंगे, 1 अपॉन tan स्क्वायर साई हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर साई एलसीएम होगा, रूट के बाहर आएगा tan साई बचेगा, ये हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर साई। आप देख सकते हैं tan साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर tan साई की जगह डी वाई बाई डी एक्स रख दिया, तो PT यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू जो आ गई y √1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx। इसी तरीके से हम ट्रायंगल PQN लेंगे, तो PQN ट्रायंगल में जब हम साइन 90 माइनस साई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर आपका PQ, हाइपोटेन्यूज PN है, तो ये साइन 90 माइनस साई इक्वल टू PQ या QP अपॉन PN हो गया। अब PQ आप जानते हैं ये y के इक्वल है अपॉन PN, तो यहाँ से साइन 90 माइनस साई कॉस साई होता है, तो यहाँ से PN की वैल्यू जब निकालेंगे तो y अपॉन कॉस साई होगा, और y अपॉन कॉस साई को आप लिख सकते हैं सेक साई, तो सेक साई जो होता है √1 + tan स्क्वायर साई होता है, और tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स यहाँ से रख देंगे, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो y के इक्वल है। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में जब हम tan 90 माइनस साई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी PQ अपॉन QN होगा। अब PQ y के इक्वल है, और QN रहेगा tan 90 माइनस साई कॉट साई होता है, इससे हम QN के लिए निकालेंगे तो y अपॉन कॉट साई आएगा, 1 अपॉन कॉट साई tan साई के इक्वल होता है, और tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स, यानी QN जो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये y इंटू dy बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। थैंक यू।